everyone? Am I audible to you all? Anshika ji, Shashi ji, Veni ji? Yes, ma'am. Good morning. A very good morning, everyone. We'll start with our prayer and then we'll come to the question and answer session. Okay, let's sit with our back erect, eyes gently closed. Om. Yogena chittasya padena vacha malam sharirasya वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. Very gently open your eyes. Sorry, there was a network issue. Yes. Am I audible now? आवाज आ रही है? Yes. Yes, Veni ji. How are you now? How are you feeling? Your mic is off. Mic. Veni ji, mic is off. Sorry. I'm okay. I'm good now. I really missed my yoga sessions. Can you hear me now? Just a second, Veni ji. Just a second. Yes. Yes, Veni ji. Now speak. I'm sorry. I'm okay. I'm good now. Perfectly fine. Only the thing is, ki, like 4 days I had gone out, and when I came back, Humpty Dumpty had a great fall. I just fell down in a washroom, and that time it didn't affect me much. But what had happened, I've been having these plant warts होते हैं, छोटे छोटे वॉट्स जो हमारे फेस पे आते हैं या हाथ पांव पे कहीं पे भी आते हैं, दे कम आउट ऑफ द स्किन, दे आर विजिबल, बट दीज प्लांट वॉट्स आर लाइक दे कम अंडर द स्किन, दो ग्रोथ होती है वहां पे, दे आर एक्सट्रीमली पेनफुल. So I got it removed earlier also, but what happened, it came back again. So touch करने पे बहुत दर्द होता है, तो I got it extracted on Tuesday. So that was painful surgery, cut लगाना. Okay. सो जो फॉल था उसका भी आफ्टर इफेक्ट इकट्ठे ही हो गया, जो प्रोसीजर हुआ. सो फ्रॉम लास्ट 1 week आई एम लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे को दर्द एक्चुअली हो कहाँ कहाँ रहा है. बट वन थिंग आई हैव रियलाइज कि योगा हैज मेड योर लाइफ understand the requirement of your body. It really makes you work. Actually, it is something like giving a fuel to a body to make you work. And मैं भले ही वर्कआउट नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा वहां पे फिजिकल एक्सर्शन इतना था कि मेरे 4,000 to 5,000 स्टेप्स अच्छे से होते थे, चलती थी मैं, काम था. बट जो मॉर्निंग सेशंस हैं, इवनिंग सेशंस हैं, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. दैट इज रियली गुड. And I'm hoping to join back again tomorrow. I'm just missing those days. Fingers crossed. Thanks to you, and God bless you. I'm telling you, really matters a lot to start your day with a good note. Abhi, hopefully, kal se I'll be back.
with a bang, Yes, hopefully. fingers crossed. And let's see, if you feel better, just start joining, and I'll then do. do according to your pace. Just go according to your pace, slow, simple, easy steps. That's it. Simple yoga poses, and then whenever you feel the strength again, you can again cope up. No, it's okay. मतलब वो दर्द चला गया जो प्रोसीजर जहाँ पे हुआ था, that portion Hmm. little hurts a lot. That's all. Otherwise, I'm all okay. And I really desperately wanted to come back to attend the session because then you feel कि यार you got nothing to do throughout your day for your family, for yourself. But Yes, good to true. see you back Yoga again. is I'm basically, really I always say, it's a lifestyle. It is just add on in our lives where we feel that actually, we are doing something for ourselves. actually. Yes, yes. Thank you so much. Thank you. Okay, Vinidhi. Okay, take care. Huh? Thank you. Please take care. Thank you. Yes. Okay. Any other questions? Vanshika ji, Pratima ji, Manaswini ji, Sonika ji. कोई questions हैं तो please feel free to ask. Questions नहीं है तो feel free to talk anything regarding your yoga journey. आपको कैसा लग रहा है योगा करके? Yes, ma'am. Pratima Srivastava. Yes, Pratima ji. Good morning. Good morning, ma'am. Yes, it's feeling very nice to attend. Always live yoga with. But nowadays, ma'am, I'm experiencing back pain. मतलब पूरा cervical से लेके नीचे तक. पर मैं जो नोटिस कर रही हूँ कि आफ्टर गेटअप मुझे थोड़ा ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे स्लो होता जाता है. तो इट इज बिकॉज ऑफ मैट्रेस भी हो सकता है क्या कि ओनली मैं झुक के काम कर रही हूँ. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ. सी सर्वाइकल जो हमारा ये रीजन स्टिफ होने के देर आर मेनी रीजंस. साइकोलॉजिकल भी होते हैं, कुछ फिजिकल भी होते हैं. ठीक है, कभी कभी हम ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, ज्यादा चीजों के बारे में जब चिंता भी ले लेते हैं तो भी हमारा जो ये पोर्शन है ये सोर हो जाता है और बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है. हमारा नेक हो गया, शोल्डर हो गया. हम्म. तो ये तो हो गया हम्म. हमारा साइकोलॉजिकल रीजन. अगर फिजिकल हम्म. रीजंस की बात करें तो वो हमारी मैट्रेस, हमारा बैड स्लीपिंग पोस्चर, कभी कभी इतनी गहरी नींद लग जाती है कि हमारा जो पोस्चर होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा नेक कंप्रेशन हो जाता है, वेन्स कंप्रेस हो जाती है, शोल्डर ऐसे ही रह जाता है, और या कभी कभी हाथ दब जाता है. तो उस कारण से भी जो हमारा सर्वाइकल रीजन है वो फिर से स्टिफ हो जाता है. स्टिफनेस वेरी कॉमन है बैड स्लीपिंग पोस्चर्स की वजह से. तो आई ऑलवेज रेकमेंड अ सर्वाइकल पिल्लो फॉर दैट. एक सर्वाइकल पिल्लो आता है जो कि हमारा जो स्पाइन का कर्वेचर है वो ऐसा सीधा नहीं है बिल्कुल. स्पाइन एक एस शेप के कर्वेचर में है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम बेड पे सो रहे हैं, हम मैट पे सो रहे हैं, तो हम बिल्कुल सीधे फॉर्म में सो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्पाइन के नेचुरल कर्वेचर्स पे है वो अननेसेसरी प्रेशर्स क्रिएट कर रहा है वो मैट्रेस. अब मैट्रेस तो वैसा बनवाने से रहे, तो क्या करना है, पिल्लोज आते हैं, सर्वाइकल पिल्लो आते हैं जो हमारा यहाँ का जो कर्वेचर होता है उस कर्वेचर को अच्छे से मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा नेक फ्री रहेगा. नेक फ्री रहेगा तो शोल्डर्स फ्री रहेंगे, और शोल्डर्स फ्री रहेंगे तो सर्वाइकल जैसे इश्यूज हमें नहीं होंगे. एटलीस्ट हमारा अपर बैक रीजन को हम मैनेज कर सकते हैं अच्छे से सर्वाइकल पिल्लो से. तो ऐसा स्लैंटिंग पिल्लो आएगा, उसको आपने लगाना है. तो आपका ये नेक का जो स्टिफनेस आपको लग रहा है कि अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है या स्टिफ हो रही है, तो उससे वो रिलीज रहेगा आपको. तो सर्वाइकल पिल्लो एक ऑर्डर कर लीजिए, अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएगा. अगर ऑनलाइन नहीं करना है तो आप शॉप पे जाके बोलिए एक अच्छा सा सर्वाइकल पिल्लो दीजिए, तो वो आपको अवेलेबल करवा देंगे. तो वो बहुत हेल्पफुल है, मैं यूज करती हूँ. बिकॉज इवन आई हैव समटाइम्स सर्वाइकल इश्यूज मुझे रहते हैं कभी कभी, जब बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर ले लेती हूँ चीजों को लेके, तो मेरा सर्वाइकल स्टिफ हो जाता है. यूजुअली फिजिकल झुक के काम करना, इस तरह से पूरा टाइम कुछ रीड करना, उसके बाद ये जो शोल्डर्स हैं हमारे आगे की तरफ झुके रहते हैं बहुत ज्यादा, हम Yes. ऐसे नहीं बैठते. हाँ, तो हम्म. उस वजह से भी सर्वाइकल होता है. बहुत ज़्यादा राइटिंग का काम है, जैसे कोई टीचर्स हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे उनको लिखने का बहुत काम रहता है, उनको सर्वाइकल हो जाता है. तो सर्वाइकल के बहुत सारे कारण हैं. ओके मैम. एक्चुअली मैं नो जब भी एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं जब बैक मूवमेंट कर रही हूँ या कोई भी यहाँ की एक्सरसाइज कर रही हूँ हुँ, तो मुझे फील होती है वो स्टिफनेस. मतलब मुझे पता चलता है हुँ, कि है. और दूसरा मैम मेरे साथ क्या चल रहा है कि मेनोपॉज इज गोइंग ऑन. तो उसमें मुझे क्या हुँ, हो रहा है, जैसे पीरियड्स थोड़े इरेगुलर है, जैसे डेट्स पे नहीं आ रहा, वो तो है ही जो है. मुझे मेंटल लेवल पे ज्यादा तकलीफ हो रही है इंस्टेड ऑफ फिजिकल. मतलब मुझे क्या से होता है एंजाइटी और ये सब चीजें. मैं हुँ. जो आप कह रहे हैं ना होल्ड करती हूँ मैं चीजों को, जैसे स्ट्रेस को मैं शायद यहाँ होल्ड करती हूँ काइंड ऑफ.
हाँ, तो क्या वो होता है जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम होल्ड नहीं कर रहे हैं, ये हमारे एरियाज़ हैं जहाँ स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है? क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा जो वात है, हमारे बॉडी में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात जनरेट होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और वो वात सेंसिटिव जगह पर हिट करता है। हमारा नेक सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, तो वो वात वहाँ जाके जनरेट होता है और वो जब वहाँ जनरेट होगा तो वो सर्वाइकल को एग्रीवेट कर देता है। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, आयुर्वेद, योगा ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो वो जो वात है उसको कंट्रोल में रखना है, तो वात कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं हम? सबसे पहले तो स्ट्रेस थोड़ा कम लेना है। दूसरी चीज़ें जो वात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, खाने-पीने की चीज़ें, फूड हो गया, उस पर थोड़ा-सा हम नियंत्रण करेंगे, उसको बैलेंस में लेकर आएँगे और एक्सरसाइज़, योगा तो हमें करना ही है। उससे हमारा वात, पित्त, कफ तीनों ही बैलेंस में रहता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, कम सोचिए थोड़ा, ठीक है? सोचने का थोड़ा-सा लेवल को कम कर दीजिए, अपने आप ये रिलीज़ होना आपको लग जाएगा कि रिलीज़ हो रहा है यहाँ का टेंशन। एक तो ये हो गया, एक हमारे हिप्स हो गए। हम बहुत ज़्यादा ट्रॉमा जो बहुत लंबे-लंबे समय के ट्रॉमा होते हैं, टेंशन्स होती हैं, डिप्रेशन होता है, वो हमारे हिप्स स्टोर करते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ट्रॉमा हमारे हिप्स स्टोर करते हैं, तो जब भी हिप ओपनिंग एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, तो वो ट्रॉमा हिप से रिलीज़ होता है। दूसरी चीज़ जो भी जब भी बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तो हमारा ये पोर्शन बहुत स्टिफ हो जाता है। तो इसको रिलीज़ रखने के लिए टेंशन कम लेना है, मेडिटेट करना है, अच्छे से चैंटिंग कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। कहीं न कहीं अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए, खाली नहीं बैठना है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और थैंक मेनोपॉज़ यू। का ये थोड़ा-सा तो साइड इफ़ेक्ट रहेगा कि एंग्ज़ायटी इश्यूज़ रहेगा, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो योगा से बैलेंस रहेगा थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा कभी लगेगा बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो गया, कभी बैलेंस में रहेगा। तो वो हमें मान के ही चल रहे हैं कि वो मेनोपॉज़ के इफ़ेक्ट्स रहेंगे, जिसे हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो वो मैनेज हम योगा के द्वारा कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, ओके? जी, ओके, थैंक यू ओके, सो मच मैम, बाय। ओके, बाय-बाय। यस, इशिता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रितिका। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? शैलजा जी, ऋतु जी, अंशिका जी? Can I ask one more question, Bhamini? हाँ जी, प्लीज। I just यस wanted यस। to ask you one thing. Like, it's been a long time. Whenever I get up in the morning, for the moment I step down, फुट पाम्स में दर्द क्यों होता है? लाइक आई जस्ट जैसे ही उठे, पैर नीचे रखा फर्श पे और आप चलने की कोशिश करते हो, तो फुट पाम्स यानी तलवों पे दर्द होता है। 2-3 स्टेप्स तो आपके ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं पैरों में कितना वजन आया हुआ है, जो आप चल नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों होता है जनरली? बिकॉज ऑफ स्लीपिंग। हमारा जो सोने का है, हम सोते हैं काफी टाइम तक, तो ब्लड सर्कुलेशन यूजुअली पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज वी आर वॉकिंग, सिटिंग, डूइंग समथिंग। जब सो के एकदम उठते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन लेवल जो होता है वो इतना क्विक नहीं होता है बॉडी में। वो फिर से तब सर्कुलेट होना अच्छे से शुरू होता है ओवरऑल, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जब फिर से हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप हम रखेंगे, ये सबके साथ होता है, इवन विद मी ऑल्सो। जब हम रखते हैं, हमें हैवीनेस रहता है हमारे काफ मसल्स में, पैरों में, एंकल्स में। और जैसे ही पैर रखते हैं, एटलीस्ट 10 स्टेप्स जब तक हम नहीं चलते हैं, वो सोरनेस रहती है हमारे हील्स में और पाम्स में। और दैट्स नॉर्मल। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना पैरों में, धीरे धीरे जैसे डे स्टार्ट करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, वो दर्द चला जाता है। तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। और अगर आपको सुबह उठते ही अच्छा करना है कि अगर आपको पैर जमीन पर रखते ही वो पेन ना हो, जस्ट डू सम एंकल स्ट्रेचेस। थोड़ा उठते ही एंकल स्ट्रेचेस करिए अच्छे से बेड में ही। थोड़ा-सा रोटेशन कीजिए, थोड़ा-सा अपनी उँगलियों को अच्छे से मसाज दीजिए और उसके बाद उतरिए, तो यू विल सी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से फिर वो पेन नहीं होगा। ओके। मॉर्निंग मैम। ट्राई दैट। गुड मॉर्निंग शैलजा जी। मैम हमको यहाँ पेन, यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन में पेन रहता है। बस इतना? ये हाँ हाँ, और मतलब कुछ काम ऐसे हैंड भी करो तो नहीं प्रॉपर करा जाता। अच्छा, एल्बो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? एल्बो, बस टेनिस बट एल्बो वगैरह तो नहीं है आपको? नो, ओके, तो कितना हाथ ऊपर होता है? मुझे एक बार हाथ ऊपर करके बताइए कितना जा रहा है ऊपर? मतलब हाथ से हाथ तो हो, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है यहाँ पे, हाथ तो हो जाता है, ठीक है। हम्म। बट पेन काफी हम्म। अच्छा। पेन ज्यादा है?
बस इतना प्रीवियस है, मतलब हिस्ट्री कुछ, नो नो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री कुछ कहीं पर लगा था, इंजरी हुआ था? कुछ भी नहीं है। तो वो पेन आई थिंक मसल स्टिफनेस की वजह से रहता है, मसल स्पैज्म आ जाते हैं कभी कभी, उस वजह से रहता है। तो थोड़ा सा ना, बहुत जब योगा पोजेस करते हैं हम, तो प्लैंक पोजीशंस नहीं करने हैं आपने, ठीक है? जिस पर भी हाथों पर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, और हम ये भुजंगासन वगैरह करते हैं ना, धनुरासन जिसमें ऐसे पूरे पीछे लेकर जा रहे हो और यहाँ का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इन आसन को अवॉइड करना है, क्योंकि आप जब ये आसन लगातार करते रहेंगे तो वो पेन ठीक होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक है? तो इस चीज पर हमें ध्यान देना है कि जैसे ही आपको किसी पोज, देखो हर पोज हमें बता देता है कि ये पोज हमारे लिए कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल नहीं है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे पिंचिंग पेन आ रहा है इस पोज को करने से, वो पोज हमने नहीं करना है, उन पोजेस को अब आप ड्रॉप डाउन कीजिए, क्योंकि वो पोज आपको स्ट्रेंथ देने के बजाय और वीक कर देगा। ठीक है? क्योंकि पहले हमें इसको क्योर करना जरूरी है। अगर इसको क्योर किए बिना हम वो पोजेस करते रहेंगे तो इंजरीज होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। तो पहले इस दर्द को क्योर करेंगे, इस दर्द को ठीक होने दीजिए, मिनिमाइज होने दीजिए। जब बिल्कुल दर्द खत्म हो जाएगा तब हम प्लैंक पोजीशन, भुजंगासन, धनुरासन जैसे आसन करेंगे। बाकी आप सिंपल पोजेस कीजिए, पवन मुक्तासन रखिए, स्टैंडिंग पोजेस कीजिए, और बस ये जो जिसपे भी हम हाथ पर प्रेशर डाल रहे हैं वो पोजेस आप नहीं करेंगे। ठीक है? थोड़े टाइम अभी अवॉइड करना है, जब तक ये पेन बिल्कुल मिनिमाइज नहीं हो जाता, और उसके बाद ये जेंटल मूवमेंट्स रखने हमने। तो यहाँ पे हाथ रखते हुए बस इस तरह से हाथ को पूरा सांस खींचते हुए ऊपर लेकर जाना है और साइड में लाना है। लंबी सांसें खींचते हुए ऊपर और साइड में। जितना डीप ब्रीदिंग करके आप हाथों को चलाएंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होते ही यहाँ जो भी टेंशन आपको क्रिएट हो रहा है वो रिलीज हो जाएगा। ओके? सिकाई वगैरह भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिकाई कीजिए, आप अच्छे से मालिश कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ मस्टर्ड ऑयल विद अजवाइन, सरसों का तेल, उसको थोड़ा-सा गरम करना है, उसमें थोड़े से अजवाइन के दाने डालते हैं, बिकॉज़ अजवाइन इज़ नोन फॉर हीलिंग प्रॉपर्टीज़। जो अजवाइन होता है उससे बहुत हीलिंग होती है। तो अजवाइन डाल के उस सरसों के तेल की बहुत ज़्यादा फास्ट मालिश नहीं, बिल्कुल सर्कुलर मोशंस में धीरे-धीरे मालिश करनी है, उस तेल को अंदर अब्ज़ॉर्ब होने देना है। ओके? उसके बाद हल्की-फुल्की आप सिकाई कीजिए, उससे मसल रिलैक्स रहेगी। ओके, गरम सिकाई करनी है ना? हाँ, गरम कीजिए, कोल्ड भी कर सकते हैं, कोल्ड पैक्स भी कर सकते हैं, बट यूजुअली गरम कीजिए अभी थोड़े टाइम के लिए। ओके? मैम, ओके। नाड़ी और अनुलोम विलोम जरा दोनों में बताइए डिफरेंस। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से नाम बदल दिए हैं। नाड़ी शोधन में कुंभक लगाते हैं। नाड़ी शोधन में कुंभक लगता है, वो प्राणायाम हो जाता है। अनुलोम विलोम में हम कुंभक नहीं लगा रहे। अनुलोम विलोम इज जस्ट अ क्रिया जिसमें हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब नाड़ी शोधन हो जाता है तो उसमें सांस लिया, कुंभक लगाया, छोड़ा, फिर सांस लिया, कुंभक लगाया, छोड़ा। अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, बहुत सारे कुंभक के प्रकार होते हैं। अब हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि जनरल क्लास में मैं कुंभक लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स रहते हैं, बीपी इश्यूज वाले लोग रहते हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के बाद भी नहीं सुनते हैं कि नहीं करना है, और वो कर लेते हैं, और करने के बाद उनको पैल्पिटेशंस बढ़ सकता है, हार्ट में प्रेशर फील हो सकता है, तो हम ये रिस्क लेते ही नहीं है कुंभक वाला। इसलिए थैंक यू। सिंपल अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन इज जस्ट अ कुंभक, दैट्स अ कुंभक एड ऑन, जिसमें हम रेशियो 1:4:2 बहुत सारी चीजें एड ऑन हो जाती है उसमें। और बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही है, नथिंग बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं। ओके मैम। यस, चिल्ड्रन। ओके। और किसी के कोई क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? Ma'am, which are the asanas that you should do fast and which ones you should do slow? Because some things like you are saying you are advising to do it fast, right? So Mm-hmm. As in, see, my understanding is yogasana is you should be done very slowly only, and the longer you should definitely. this one it is. But there are some stretches that you people only advise that you do it fast. Uh, There are some those are exercises just the that you do it warm-ups. fast. Those are just the Okay, warm-ups. warm up. Whenever I'm talking about asanas, I never said that please do this asana very fast. No, I never said it. Okay. But when I'm talking about warm-ups, yes, definitely a warm-up should be done quickly, because to warm up the body very fast, because we just have 1 hour of class, and we can't, just keep one asana for holding, because people get bored easily.
See, we can't, as I told you earlier, that people are not that patient that they will hold the asana for 1 minute, they will hold the Tadasana. See, the Tadasana can give you a good warm up. If we are not doing any warm up exercises and we are just doing one Tadasana or just one set of Surya Namaskar with holding off, with each asana holding for at least 1 minute, Ashva Sanchalan 1 minute, Padhastasana 1 minute, Bhujangasana 1 minute, it will give you a good warm up. You don't require that all Sarvang Pushti and jogging and running and etc. etc. But why we do this? Because people are not that patient and they are here just to either lose weight or gain weight or manage their disease. They don't understand the actual essence that okay, the asana means the posture. Posture means to be stable, calm, and composed in every pose for at least 2 minutes, 3 minutes. But we can't do this in the general class for sure. I do that in my personal classes where I make my client hold for at least 2 minutes in Vakrasana, 2 minutes Vrikshasana, and that's the actual asana when we talk about. But what we are doing here is also the asanas only after the warm up. But yes, warm up I take it very quickly because to warm the body nicely to avoid all kind of injuries. Because if the warm up is not done properly, they will definitely injure themselves while holding some of the other asanas. So yes, warm up quickly, asana slowly. Okay. But we Thanks. are again, we have the team has advised us that we can't keep the asana folded for more than 10 counts. So it is an advice from the team that we just have to count 10 and then we have to make the clients release the asana. So yes, we can't extend more than that. No, but we practice like after the class, during the day or during holidays and weekends. It's up to us to practice at our homes. Definitely. You can practice for 3 minutes, 4 minutes, up to your capacity. You can sit in Padmasana for half an hour if you wish to. And then you will see the actual blood circulation effects in your body, in your knees, in your pelvic region. And then the actual effects we can feel. I sit in Vajrasana for 45 minutes. So, but I can't, make people sit in Vajrasana for even 15 minutes because then their knees won't work, their ankles won't work. So yes, we can practice and practice meditative poses more. Try to sit in meditative poses more you can sit for 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, and then extend it more than 30 minutes and then see the magic effects. Yes, definitely. Thank you. Yes, Venkateshan. Okay. Yes. Any more questions? Ritika, कोई कुछ पूछना है? Okay. यमुना जी, गुड मॉर्निंग. इशिता जी, हाउ आर यू नाउ? आप कहाँ गायब थे? 2 दिन क्लास में नहीं थे. वो गणेश फेस्टिवल है ना, इसमें भी हम बिजी हो गए थे. अब ओके. टाइम नहीं मिल रही थी मुझे. होप टू सी यू अभी अगेन next week. सून. बच्चों के Okay, साथ ही यमुना. होती है. ओके. ओके यमुना जी. हाँ जी इशिता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बट आपका माइक ऑफ है. प्लीज माइक को ऑन अच्छा कीजिए. एंड हाँ फिर मैम, मैं ऐसे कह रही थी, मुझे जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है ये. ओहो, यूटीआई हो जाता है आपको? हाँ. हाँ जी. ठीक है. आप पानी पीते हैं अच्छे से? डिहाइड्रेटेड तो नहीं रहते हैं बहुत ज्यादा? नहीं, पानी हाँ थोड़ा कम ही लेती हूँ. हाँ, सबसे मेन रीजन होता है पानी नहीं पीना, यूटीआई को इनवाइट करता है. ठीक है, तो पानी हमने बहुत सारा पीना है. अगर ऐसे ही नॉर्मल पानी नहीं भाता आपको तो उसमें थोड़ा सा कुछ और कोशिश कीजिए. इलेक्ट्रोल पाउडर होता है ना, ओआरएस और इलेक्ट्रोल, कुछ भी नहीं हो ठीक रहा है. है तो भी हफ्ते में एक बार उसका घोल तो पीना ही है ताकि हमारे शरीर में इनफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो. तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, शरीर अच्छा चल रहा है, फिर भी हफ्ते में एक बार इलेक्ट्रोल या ओआरएस अच्छे से पानी में मिलाकर पूरा बॉटल ठीक. पी जाना है. ठीक है. दूसरी ठीक. बात, पानी नॉर्मल नहीं भाता तो डिटॉक्स वाटर बनाइए. उसमें क्यूकुम्बर वगैरह, ककड़ी काट के एक कांच की बॉटल खरीदिए. ठीक है, उसमें ककड़ी वकड़ी काट के स्टील में अपने नहीं बना पुदीने सकते? के पत्ते. हाँ, स्टील के जग में नहीं?
स्टील में बना सकते हैं, पर स्टील में क्या रहता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, कांच में वो जल्दी खराब नहीं होएगा। ठीक है, ठीक है आधा मैम, घंटा, कांच एटलीस्ट आधा पौना घंटा आप रख सकते हैं कांच में उसको, और कांच में थोड़ा सा भाएगा, आपको अच्छा ठीक है, लगेगा। ओके। तो ककड़ी का पानी, और स्टील में अगर आप बनाते हो तो तुरंत उसको पीजिए, फिर 15 मिनट रखने के बाद तुरंत पीना है उसको, ज्यादा देर ठीक। हम रख नहीं सकते। ठीक है, तो ककड़ी, आ, ये हो गया, पुदीना के पत्ते हो गए, थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट हो गया, उसको अच्छे से शेक कर लीजिए, थोड़ी देर रखिए, उसको पी जाइए। डिटॉक्स वाटर है, पूरा बॉडी को हाइड्रेट कर देगा आपकी। बहुत सारा सलाद खाइए, ककड़ी खाइए, पानी जितना पी सकते हैं पीजिए। और उसके बाद जब भी पब्लिक टॉयलेट्स हम यूज करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है, क्योंकि यूटीआई, उसके ये भी एक रीजन होता है पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने की वजह से। हाइजीन को मेंटेन करना है बहुत ज्यादा, तो हाइजीन मेंटेन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट, और पानी पीना दूसरी इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड नहीं रहना। ठीक। ओके शिवा जी। ओके मैम थैंक यू। एक और क्वेश्चन है मैम, एक्चुअली मुझे तो वेजिनल इन्फेक्शन ज्यादा होती है। हाँ हाँ, वो बार ओके। बार आती है, वो मेडिकेशन भी किया है, पर वो फंगल इन्फेक्शन है ना, वो हो जाती है। मुझे परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है अभी तक। परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला? व्हाट डॉक्टर सेड? यू मस्ट हैव विजिटेड योर गायनेकोलॉजिस्ट, Nah, नो? nah, yeah, I went actually. They told, okay, it will happen, no problem. It's normal in human, like that they're telling, and they're giving some medication that is antibiotics. That's it. That will go. No, It no. will come in. Don't Yeah, yeah, don't go for antibiotics and such things, please, because it will, increase your acidity levels and gastric issues unnecessarily. Okay? yeah. That actually I faced afterwards. Hmm. Lot of Mm. bloating and lot of gastric issues you will face if you're having antibiotics like this. What you do is just maintain a lot of cleanliness. It is very important. Safer sex practice Yeah, and lot of cleanliness is important. Okay? So just make sure that after having physical intercourse, you are making sure that you are washing your area, your vaginal area yeah, nicely, and going to urine, passing urine is very important after that. Okay, so yeah. just make sure that after safer sex practice, you are passing your urine nicely, you are cleaning that area nicely, and keeping it dry. Don't, just don't keep it very moist. Keeping it dry is very necessary to avoid all such fungal infections and yeast infections. Okay, so just make sure. Actually, And if you before menstrual cycle, it will start, ma'am. Actually, before 3-4 days, because that time it will be dry. So that time it will start actually for me. Okay, one ultimate solution I will give you, that whenever you are alone at home, just give a good sunlight to your butthole, very important. Okay, and just give a good sunlight to your vaginal hole as well. Yeah, that is. Yes, Yeah, just a happy baby pose. You have seen a happy baby pose, right? See, I'm yeah. very open when it comes to such talks. So you just lie down in a happy baby pose on your mat and let the sunlight come to both your holes, Yeah. and let that sunlight, Mm. fill the body with a lot of good heat. Okay, so it will help you in your all these infections. Yeah. Nowadays, sunlight directly coming inside the home is difficult nowadays. See, That is the sunlight problem. helps. Okay, I believe sunlight Yeah. helps in depression, sunlight helps in anxiety, and sunlight helps in all kind of diseases. Okay, so just have Yeah, good ma'am. sunlight. Yes, Yeah, yes. okay, I will try. Thank you. Okay, Yamuna ji. Okay. ऐश कार्ड जूस के बारे में पूछना था। Ash ऐश curd juice के बाद, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पी सकते हैं वो, आराम से पीजिए, अच्छा होता है वो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको आराम अच्छे से बनाइए, ब्लैक पेपर डालिए और पी जाइए। कितना पी सकते हैं सुबह शाम? सुबह शाम पीजिए, वेट लॉस में बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा वेट लॉस भी नहीं करना है हमें, ठीक है, तो एक टाइम भी पियेंगे तो भी चलेगा, जस्ट हैव इट फॉर वन टाइम, एक बार के लिए भी वैसे काफी बेटर है। है ना हेल्थ के लिए? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है, ठीक। पीजिए। चलिए, आई विल टेक अ लीव नाउ, आई थिंक इट्स 11 ऑलरेडी। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस तो नहीं रह गए किसी के? मैम मुझे पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम सनलाइट का बेस्ट टाइम कौन सा है, मतलब सनलाइट में बैठने का? सनलाइट में बैठने का, जैसे ही सुबह सूर्योदय होता है उस टाइम से लेके आप 9:30 से 10
9:30, लास्ट टू लास्ट 9:30, ठीक है। 10 बजे के बाद वाला सनलाइट थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है क्योंकि यूवी रेज बढ़ जाती है, तो हम 9:30 बजे तक का सनलाइट अच्छे से ले सकते हैं। 10 बजे तक भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, 10 बजे के बाद वाला थोड़ा सा अवॉइड करना है, और 11 बजे के बाद वाला तो बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्श होता है। ओके, तो सुबह जैसे ही सूर्योदय हो रहा है, अच्छा सा सूरज निकल रहा है, उसकी किरणें आ रही है, उसी टाइम पे हमने सनलाइट खानी है अच्छे से। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Okay, I'll take a leave now. Take care, everyone. Good day. Enjoy your Sunday. Take care. Thank you so Okay, much. thank you, ma'am. Thank you, ma'am.